આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા શિક્ષા અને રોજગારીના મુદ્દે યુવાનો સાથે કેજરીવાલનો સંવાદ કાર્યક્રમ યોજાયો. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયા, ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગોપાલ ઇટાલિયા સહિતના આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ ભાવનગર જિલ્લાના શિક્ષા અને રોજગારના મુદ્દે યુવાનોના સાથે સંવાદ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. આ સંવાદ કાર્યક્રમના પ્રારંભે ઉપસ્થિત આપના નેતાઓએ ભરતી પ્રક્રિયાના પેપર ફૂટવાથી લઈ નોકરી સુધીના મુદ્દે સરકારને આડા હાથે લીધા હતા. બાદ ઉપસ્થિત રોજગાર માટે રોજગાર યુવાનોએ રોજગારી માટેના વિવિધ પ્રશ્નો મુખ્યમંત્રી અરવિંદભાઈ કેજરીવાલ સમક્ષ મૂક્યા હતા, જેમના જવાબમાં અરવિંદ કેજરીવાલ દ્વારા ભરતી પ્રક્રિયા માટેનું કેલેન્ડર જારી કરાયું હતું. બાદ વારંવાર ફૂટતા ભરતી પ્રક્રિયાના પેપરોની તેમની સરકાર આવશે તો પેપર ફોડનાર સામે નવો કાયદો ઘડવામાં આવશે. તેની સાથોસાથ 2015થી 2022 સુધી પેપર ફોડનાર તમામ સામેની ફાઇલ ખોલી કાર્યવાહી કરવાની આવશે તેમ જાહેરાત કરી હતી. भारत माता के આજના આ યુવા રોજગાર સંવાદ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આપ તમામ ભારતના ગુજરાતના ક્રાંતિકારી યુવાનોને હું સલામ કરું છું, વંદન કરું છું, આભાર માનું છું. માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી છેલ્લા ઘણા દિવસોથી સતત ગુજરાત આવીને ગુજરાતના અલગ અલગ વર્ગના લોકોની વાત સાંભળી રહ્યા છે. વેપારી હોય, ખેડૂતો હોય, મહિલાઓ હોય, આદિવાસીઓ હોય, યુવાનો હોય, સરકારી કર્મચારી વર્ગ હોય, બધાની વાત સાંભળે છે. ત્યારે એ અનુક્રમમાં આગળ સરકારી પરીક્ષાની તૈયારી કરતા યુવાનોની વાત સાંભળવા માટે આજે અરવિંદ કેજરીવાલજી પધાર્યા છે. વિશેષ ખુશીનો દિવસ છે. તમારા બધાના હાકલા પડકારામાં ખુશી દેખાય છે. ત્યારે એક સરસ મજાની વાત કેવી છે કે 27 વર્ષથી ભાજપની સરકાર છે. આપણામાંથી ઘણા બધાએ અથવા આપણા મમ્મી પપ્પાએ વર્ષો સુધી ભાજપને મત આપ્યા અને ભાજપને મત આપવાનું પરિણામ એ આવ્યું કે ભાજપના કાનમાં સત્તાનો મેલ ભરાઈ ગયો. કોઈની વાત સંભળાવવાનું બંધ થઈ ગયું. બેરા કાનવાળી સરકાર થઈ ગઈ. એ પોલીસ ગ્રેડ પેનું આંદોલન હોય તો ભાજપના બેરા કાન સુધી અવાજ ન પહોંચે. આંગણવાડીની બહેનોનો પ્રશ્ન હોય, ભાજપના બેરા કાન સુધી પ્રશ્ન ન પહોંચે. બિન સચિવાલય, હેડ ક્લાર્ક, જે કાંઈ પેપરો ફૂટે એની રજૂઆત યુવરાજસિંહભાઈએ કરી હોય તો સરકારના બેરા કાન સુધી અવાજ નહોતો પહોંચતો. અરવિંદ કેજરીવાલે દિલ્હીથી લાવીને ભાજપના કાનમાં ઝાડુ મારીને મેલ સાફ કર્યો તો બધો અવાજ સંભળાવા લાગ્યો. અને જેવો મેલ સાફ થયો, ઝાડુ માર્યું, તરત જ તે છેલ્લા 16 વર્ષથી પોલીસના પગાર ભથ્થામાં વધારો નતો થયો. રાતે CR પાટીલ ને ભૂપેન્દ્રભાઈ ને ડ્રગ્સ સંઘવીના બધા રાત્રે જાગ્યા અને રાત્રે પગાર વધારો કર્યો. રાત્રે પગાર વધારો કર્યો. કેમ? શું થયું? આ બધા સત્તાના નશામાં બેફામ થયેલા, કોઈની વાત સાંભળતા નહોતા. હજુ તો થોડોક હાવણો માર્યો છે. ચૂંટણી પછી તમે બધા જો આખા ગુજરાતમાં હાવણો મારશો ને તો હારા હારા કામ થવા લાગશે. यहाँ पर आज हमारे बीच में मंच पे हैं. अगर दिल्ली के बच्चों को अच्छे से गुजराती आती होती तो मैं उनके वीडियो जरूर दिखाता. आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं. दिल्ली के स्कूलों में, दिल्ली के कॉलेजों में जो बच्चे नौकरी की तलाश में हैं, अगर मेरे बच्चों को गुजराती आती हो तो मैं आपके वीडियो जरूर दिखाता. सम्राट भाई, सम्राट सामंत गढ़वी जी, आज बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को यहां इस तरह देख के. अरविंद केजरीवाल जी के साथ युवा रोजगार संवाद में आप लोग आए हैं. महाराणा कृष्ण कुमार जी की धरती पर मुझे गोपाल भाई ने, ईशनान भाई ने, युवराज जी ने अप्रैल के महीने में बुलाया था, अभी कुछ महीने पहले. और अप्रैल के महीने में इन्होंने यहां बुलाया कि देखो शिक्षा मंत्री के इलाके में सरकारी स्कूलों के क्या हाल हैं. अब मुझे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हाल है, आप तो यहीं से हो, तो मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा. लेकिन आज सुबह मैं यहां चर्चा कर रहा था किसी के साथ कि मैं पिछली बार यहां आया तो सरकारी स्कूलों के इतने बुरे हाल देखे जैसे लगा कि किसी
कबाड़ खाने को बहुत दिन से बंद करके रखा हो, उसमें मकड़ी के जाले और गंध मच जाए, ऐसे ऐसे स्कूल में मैंने रोजाना बच्चे पढ़ते देखे यहां पे। तो किसी ने मुझे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आप तो स्कूलों की बात कर रहे हैं, यहां तो कॉलेजेस भी ऐसे ही हैं। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। उन्होंने कहा आप 10 मिनट निकाल के आयुर्वेद कॉलेज चले जाइए, आपको वो स्कूल से बुरा ना दिखे तो बताना क्या हाल कहा था। मुझे नहीं पता, आप लोग जानते हो, यहां के पत्रकार साथी जानते हैं। ये तस्वीर बदलनी है। आज अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनके विजन के साथ, उनके मार्गदर्शन में जो सबसे बड़ा काम किया है केजरीवाल जी ने दिल्ली में, वो लोग कहते हैं शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया है, पर मुझे लगता है घरों को छूने वाला, युवाओं से संबंधित सबसे बड़ा काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, नौजवानों को रोजगार देने का। आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। लोग पढ़ लिख के बैठे हैं, नौकरियां नहीं है। डिग्रियां हाथ में लेके बैठे हैं, नौकरियां नहीं है। और जहां नौकरियां हैं सरकार में, वहां नौकरियां लगाने को लोग तैयार नहीं है। अभी आपके सभी वक्ताओं को मैं सुन रहा था और आपका दर्द किस तरह से छलक के आ रहा था उसमें कि जब भी कोई वक्ता बोलता था पेपर लीक हो जाता है, पेपर फूट जाता है, आपकी तरफ से जो उसका गुस्सा निकल के आ रहा था, उससे पता चल रहा है कि नौकरियां तो हैं गुजरात में, लेकिन देने वाले नहीं है। बधाનું स्वागत है सर। सबसे ज्यादा जो सवाल आइडेंटिफाई किए पेपर लीकेज को लेके, मैं सारों का नाम पढ़ लेता हूं एक बार। गलचर परेशभाई राघवभाई, उपेंद्रभाई वल्कुभाई वाड़ा, मीतभाई जादवभाई लाठिया, मीतभाई लाठिया, गोहिल जयदीप सिंह, विशाल सोलंकी, बारैया जिग्नेश, जानी आरतीबेन नरोत्तमभाई, बलदेवभाई मकवाणा, भालिया अश्विनभाई, दिग्विजय सिंह झाला कालियाबीड़थी, खसिया जयदीप सौजीभाई, मकवाणा जिग्नेश, भावनगर पूर्व परमार काळुभाई, परमार प्रतापभाई, डाभी जगदीश, धांधलिया जल्पाबेन, आटला लोगों है सर। इतने लोगों ने पेपर लीकेज और इनमें भी सारे लोगों है तो शॉर्टलिस्ट किया है। तो ये जल्पाबेन ने, धांधलिया जल्पाबेन, हाँ आपो माइक आपो, एमने माइक देजो जल्पाबेन, यहाँ नीचे फर्स्ट रो। हाँ सर, आप जो ये गुजरात में पेपर लीक हो रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे ऐसा कि जिससे हमें आपको भरोसा आ जाए कि आप आने के बाद यहाँ पे पेपर लीक नहीं होंगे? ऐसा कौन सा कानून बनाएंगे? वनराजभाई वाड़ा कागदड़ी थी छे, वनराजभाई वाड़ा। मैं सारे नोट कर रहा हूँ, आपके सबके एक साथ लास्ट में जवाब दूंगा। मैं अमरेली जिला के बगसरा तालुका से कागदड़ी गांव से आ रहा हूँ और ये अमरेली जिला में कोई भी कोई रोजगारी नहीं है। ये भाजपा ने फाका फौजदारी ज्यादा कर रखा है, तो आपकी सरकार आए और मेरे को ईमानदार बनाई और मेरे अमरेली जिले में सब युवा रोजगार को धंधा मिले, ऐसे मेरी रिक्वेस्ट है। मकवाणा नीताबेन हरिभाई सथरा। मेरा नाम मकवाणा नीता हरिभाई है। मैं सथरा से आ रही हूँ, महुआ से। 4 बरस से टेट टाट सी एग्जाम आ रही नहीं, विद्या सहायक की भर्ती नहीं आ रही और हम तैयारी करते हैं पर कुछ एग्जाम नहीं ले रहे तो हम क्या करेंगे? थैंक यू सर। यादव हर्ष। हेलो सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि हम देख रहे हैं कि सारे स्कूल आजकल प्राइवेट हो गए और सारे स्कूलों में फीस भी इतनी ज्यादा है कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते और स्कूलों का बहुत बड़ी मात्रा में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? अभी सुन रहे थे कि मनीष सिसोदिया को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अब तो मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में ही गिरफ्तार कर लेंगे इनको। दोस्तों, आज महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी के धरती पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। वो एक बहुत महापुरुष थे, महान व्यक्ति थे। आजादी के बाद सबसे पहले देशभक्ति का जज्बा दिखाते हुए उन्होंने अपनी रियासत सरदार पटेल को सौंपी थी। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि ऐसी महान शख्सियत को भारत रत्न से नवाजा जाए। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है, आज मैं अपने साथ देश की नहीं दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को लेकर आया हूं।
मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने दिल्ली के स्कूल शानदार कर दिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल, पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का भी बहुत बुरा हाल था। अभी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि एजुकेशन सिस्टम कैसे ठीक करेंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जब 2015 में हमारी सरकार बनी, इतना बुरा हाल था। दीवारें टूटी पड़ी थी, छत टूटी पड़ी थी, छत पे से पानी गिरता था, बच्चों के पास डेस्क नहीं थे, टीचर आते नहीं थे, पीने को पानी नहीं था, टॉयलेट इतने गंदे थे, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं था, रिजल्ट बहुत खराब आते थे। 5 साल के बाद आज आप जाके देख लीजिए, दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार बन गए, इतने शानदार बन गए। मैं खुला निमंत्रण देता हूं आप सब लोगों को, आप में से कोई भी जाइए, दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर चले जाइए आप। अभी कई पत्रकार गुजरात से गए थे, करीब 30-40 पत्रकार गुजरात से गए थे, वो खूब घूम के आए, बहुत अच्छा लगा उन्हें। आप भी जाइए, और अगर जा नहीं सकते तो आप दिल्ली में किसी को फोन करके पूछ लीजिए, इतने शानदार सरकारी स्कूल बन गए। प्राइवेट स्कूल वालों ने पहले गुंडागर्दी मचा रखी थी, जब मर्जी फीस बढ़ा देते थे, लोग बड़े दुखी थे। पिछले 7 साल से किसी भी प्राइवेट स्कूल वाले को नाजायज फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों ने, ऑर्डर पास कर दिए। जितने प्राइवेट स्कूल थे सबका ऑडिट करवाया हमने, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाया, और जब ऑडिट के नतीजे आए तो पता चला किसी प्राइवेट स्कूल ने 30 करोड़ की एफडी करा रखी है बैंक में, 40 करोड़ की एफडी करा रखी है। हमने ऑर्डर किया, एफडी तुड़वाई और बच्चों के पैसे वापस कराए। पहली बार भारत में हुआ होगा। आप लोगों ने कई प्रश्न पूछे, पेपर फूटने के बारे में पूछा, इसका जवाब दूंगा मैं डिटेल में। रोजगार के बारे में पूछा, टीईटी टीएटी एग्जाम के बारे में पूछा, उसका भी जवाब दूंगा। अभी एक हैंडीकैप भाई ने पूछा क्लरिकल स्टाफ में क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। हमारी सरकार बनेगी, हम रूल बदलेंगे। हमारे पत्रकार भाइयों ने अभी अपने मुद्दे उठाए। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग आपकी बात यह लगी कि चर्चा के लिए भी नहीं बुलाते। इनको अहंकार हो गया है, इनको गरूर हो गया है। 27 साल की सत्ता में रहने के बाद इनको लगता है, हम कई बार गुजरात में जब आते हैं तो यहाँ के नेताओं से बात करते हैं, बीजेपी वालों से, हमने कहा कुछ करते क्यों नहीं हो? कहते हैं जरूरत क्या है, क्यों करें, ऐसे ही वोट मिल रहे हैं, कहां जाएंगे लोग? बोले कांग्रेस को देंगे तो कांग्रेस वाले हमारे में आ जाएंगे। पहली बार इनकी नानी याद आ रही है, आम आदमी पार्टी आ गई है। तो मैं पत्रकार बंधुओं से सबसे कहना चाहता हूं, जितने सरकारी फैसिलिटीज आपको बंद की गई सारी दोबारा चालू कराएंगे, आपके साथ बैठेंगे, और जो जो फैसिलिटीज हो सकती हैं आप वो सारी फैसिलिटीज आपको देंगे, और आपसे निवेदन करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद हमारे पक्ष में मत छापिएगा, हमारी त्रुटि निकालिएगा। 2018 में तलाटी का पेपर हुआ, 1800 पोस्ट थी, 32 लाख लोगों ने अप्लाई किया। आज तक वो पेपर नहीं करा इन लोगों ने, पेपर कराया ही नहीं इन लोगों ने। अभी 2022 में दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए, लेकिन इन्होंने पेपर नहीं कराया। जो सरकार 5 साल में पेपर नहीं करा सकती, वो सरकार कैसे चलाएंगे? उनसे सरकार उसके बस की बात नहीं है। तो आज मैं आपको आश्वासन देता हूं, दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, फरवरी में तलाटी का पेपर होगा। फरवरी में तलाटी का पेपर होगा, अप्रैल तक नतीजे आ जाएंगे, और अप्रैल के महीने में जो जो सफल कैंडिडेट होंगे उनकी पोस्टिंग हो जाएगी।